So guys, welcome to session number 2, and today we will just move further. Already you know your coaches and support team. So today we will just learn about the tokens in programming language, data types and expression. So here we will step by step we will go through all the topics. So I think you have understood, you have got enough knowledge about what is programming language. So as we need to communicate with the computer, and therefore it is a user-friendly language which is developed, is a programming language, and there are multiple languages. And here we are going to learn C++. Already we yesterday learned about the syntax, how to write programs, program कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता है, द वे ऑफ राइटिंग, द मेन फंक्शन एंड द रोल ऑफ मेन फंक्शन, ये सब हमने कवर किया था कल के क्लास में. Now today we will just go into the depth details of it, and just we will learn all other things in the programming language. So first of all, the word which we use is the tokens. तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स यूज किए जाते हैं ना. what are these tokens are? So these are basically the small units. कोई भी चीज को प्रोग्रामिंग में जब रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं टोकन्स. Now how we can interpret it? Yesterday I told you about there are basically special words. जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम लोग मराठी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, whatever whichever language we use, basically what we use make use of words. It is a collection of words. When we form sentence, it is a collection of words and grammar rules. So grammar rules को apply करके हम लोग sentences को form करते हैं. So we must know, if we want to communicate, we must know that vocabulary, and the computer vocabulary is nothing but known as keywords. So these are also this is one of the token of this programming language, which is known as keyword. Next we will move towards the identifiers, constants, strings and operators. Step by step today we will get gist of this. Let's start with the keywords. And again, as I told you that there are different keywords in different platforms. So again we will be using ANSYS standards. So here we will be using those keywords. Object oriented language को सीखने के लिए जितने 48 keywords हमने कल देखे थे, वो सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज करेंगे. और सारे यूज नहीं करने पड़ते. कल भी मैंने बोला था कि कुछ रिजर्व जो वर्ड्स है वो हम स्पेसिफिक वे से उसको यूज करेंगे, और वो रिजर्व जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, उसका एक्चुअली लिखने का तरीका हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं कर सकते. So these are special words, and therefore those are known as keywords. Now we will move towards the identifier. This is the next parameter in the programming language, which are known as identifier. Anything which we need to identify in while writing program. प्रोग्राम लिखते वक्त या जो भी चीज हमें कंप्यूटर के बतानी है उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल नाम देना पड़ता है. नाउ अगेन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. Keywords are inbuilt names. Keywords are inbuilt names. So we can't use keywords, okay, for assigning some name to some entity. कुछ भी चीज अगर प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करनी है और इनबिल्ट अगर कुछ कीवर्ड्स है तो उसका वापस हम यूज नहीं कर सकते हैं. आइडेंटिफायर के आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी चीज अगर प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हम वो कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते. तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट नेम्स गिवन बाय यूजर टू आइडेंटिफाई समथिंग while writing program. Now what is that something means? There are many things which we need to identify while writing programs. So step by step we will go through it. We will understand that what do you mean by variable. Further I will just come across the variable. Yesterday we learned one concept of function, which is main function. तो कल हमने जो main function देखा था, so main एक क्या है? Main is simply one name given to function. So main is the name. So main becomes the identifier. लेकिन ये आइडेंटिफायर इनबिल्ट है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. लेकिन अगर हमें हमारा खुद का कुछ अगर फंक्शन अगर तैयार करना है तो वो खुद का फंक्शन को हमें खुद ही नाम देना पड़ेगा.
So we need to give it, we should give it a special name. Okay, so that will be called as a function identifier, क्योंकि वो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे दो नंबर्स का मुझे एडिशन करना है तो मैं बोल रही हूँ सम, तो सम इज बेसिकली अ आइडेंटिफायर. ओके, तो सम इज अ नेम गिवन टू दैट फंक्शन. इन द सिमिलर वे आगे हम लोग जैसे जाएंगे ना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि आज हम लोग बेसिक चीजें सीखेंगे और उसी को हम लोग एडवांस पार्ट में उसको एक्सटेंड करके लेके जाने वाले हैं. एंड दीज एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट यूजर डिफाइंड थिंग्स विच आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जैसे अरेज है, क्लासेस है, स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारा हम लोग आगे लर्न करने वाले हैं. तो वहां पे भी हर एक चीज को हमें नाम देना पड़ेगा. वी नीड टू नेम दैट एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट in a correct way, and therefore it will be called as identifier. So anything for which you assign name becomes the identifier. So identifier can be a variable, identifier can be an array name, identifier can be a class name. So slowly and steadily you will learn all the concepts. So it may consist of identifiers. While using identifiers, again there are certain rules which you need to follow. कि आइडेंटिफायर हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो बस अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए. इन बिटवीन आप डिजिट भी यूज कर सकते हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो. अंडरस्कोर सिर्फ परमिटेड है, बाकी के स्पेशल कैरेक्टर्स आप आइडेंटिफायर को नाम देते वक्त, कोई भी चीज को नाम देते वक्त यूज नहीं कर सकते. डिजिट से ये स्टार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो सकता है. और उसके बीच में जैसे अगर सपोज एक एंटिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मेरा फुल नेम मुझे स्टोर करना है, तो मैं अगर फुल नेम करके एक स्टोरेज बना रही हूँ फुल नेम, तो आई कांट डिक्लेयर इट एज फुल सेपरेटली एंड देन स्पेस एंड देन नेम. I must connect it with underscore. Otherwise, what I should do? Simply, I should write full name in a single word. Okay, like full name without space or without anything. Okay. Otherwise, you can add underscore to just point the separation between the names. So these are very important rules. First of all, you need to understand that because the first, while writing first program itself, we need to name that entity. So these are called as the identifiers. Yes, again uppercase and lowercase characters. This is again very important aspect while assigning name to any entity in programming. जब भी हम कोई भी एंटिटी को नाम असाइन करते हैं ना, तो हमें ये याद रखना है कि उसका कुछ भी एक तो कीवर्ड से लेना देना नहीं है, और दूसरा ये जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है. ओके, तो प्रोग्रामिंग के जितने भी कीवर्ड्स है वो स्मॉल केस में ही लिखे जाएंगे, और जो भी कीवर्ड्स अगर आप स्मॉल केस की जगह अगर अपर केस में लिखते हो तो वो कीवर्ड करके आइडेंटिफाई कंपाइलर नहीं करेगा, उसके लिए एक वो अलग ही चीज हो जाएगी. और अगेन इट विल कम इन कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर कि उसको ऐसे लगेगा कि यूजर ने कुछ चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग नाम दिया है, लेकिन हमें वो कीवर्ड्स वैसे यूज नहीं करने हैं, अदरवाइज हम खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. और दूसरा तो स्मॉल केस लेटर्स में ही सारे जो कमांड्स हैं वो सारे स्मॉल केस लेटर्स में ही होने चाहिए. लेकिन तुम लोग आइडेंटिफायर को जब आप नाम देते हो तो आइडेंटिफायर नेम्स can be in small case or upper case. So there is no restriction. You can just add small case letters or you can use upper case letters while naming, or you can use combination also. So बस कीवर्ड को यूज करना नहीं है वेरिएबल को नाम देते वक्त. सो ये नेमिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ही बहुत सारी हम मिस्टेक करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फिर हमें बहुत सारे एरर्स मिलते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स. अभी ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के पार्ट में मैं बाद में आऊंगी, बिकॉज दिस इज अ लेटर पार्ट. फर्स्ट आई वुड लाइक टू कवर दिस कांस्टेंट. तो अभी क्या है कि हम लोग पहले अभी ये नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफायर हमने देखा, कीवर्ड हमने देखा, आइडेंटिफायर. अभी नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट्स. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, द वर्ड कांस्टेंट मीन्स व्हाट?
Constant itself has its own meaning. Constant, the thing which cannot be changed, is known as constant. Yes. So now, how many types of constants are there? How many types of constants? Anyone can tell me? So already actually I have just displayed these contents on the slide, but just I'm asking one simple question. You can just type in chat box. So actually you can give me answer that how many types of values we use in our day to day life. थोड़ा सोच के देखो कि इतना जिंदगी भर जब से आप केजी में गए हो या नर्सरी में गए हो तब से आज तक आपने कितने टाइप के वैल्यू यूज किए हैं? थोड़ा सोच के बताओ कितने टाइप के वैल्यू आपने यूज किए हैं? Just type in chat box how many types values you use. 1, 2, 3, 4, 5. How many types values? कितने टाइप के वैल्यूज आपने यूज किए हैं? अभी तक सोच के देखो. Yes, no one? So we have used how many types of values? We have just used only 2 types of values. Now how 2 types? The first type we use the characters. कैरेक्टर्स हमने देखे, जितना भी हम बात कर रहे हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ओनली. एंड द नेक्स्ट थिंग वी यूज नंबर्स. नेक्स्ट थिंग वी यूज नंबर्स. तो कैरेक्टर्स को यूज किया और नंबर्स को यूज किया. अभी कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है. जब एक सिंगल कैरेक्टर है तो इट विल बी नोन एज कैरेक्टर. And when it comes to collection of characters, then it is known as string. Then it is known as string. Collection of character is known as string. वैसे ही numbers में जब आते हैं तो again numbers has 2 bifurcations. Number has 2 bifurcations. नंबर में क्या होता है? हमने कितने कौन से नंबर देखे थे? इसमें हमने 2 टाइप के नंबर देखे थे. एक तो फुल नंबर्स होते हैं और एक जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल नंबर्स. तो सिंपल फुल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स. तो 2 ही तरीके हैं. एक फुल नंबर होता है और एक डेसिमल नंबर होता है. तो यहाँ पे भी उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं. जैसे ए फॉर एप्पल हमने लर्न किया तो वी लर्न ए. तो ए क्या हो गया? ए का मीनिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं. We cannot change the meaning of A. Therefore, A is constant. Again, when we say B for ball, so B is constant. C is constant. D is constant. So, every value which we use, each value which we use in our day-to-day life is a constant. So, now how many types of constants will be there? Yes, the first will be the characters which we use. Those are called as character constant. उनका वैल्यू हम बदल नहीं सकते, उसका मीनिंग हम बदल नहीं सकते. So these are constants. Yes. वैसे ही integer values. Number 10 has its own meaning. Number 20 has its own meaning. So we can't change value or meaning of that particular integer value. So that is known as integer constant. Now what is floating point? 20.5. अगर ये नंबर लेते हैं तो वो क्या हो गया? उसका एक खुद का मीनिंग है that we cannot change. So 25.5 becomes again floating point constant. It becomes floating point constant. In the similar way, अगर हम कैरेक्टर का कलेक्शन करते हैं, that means my name is Surekha. So Surekha has number of characters. Okay. So it is a collection of characters. So collection of character, it has got its own meaning. We can't change the meaning of Surekha.
So therefore that will be known as string constant. That will be known as string constant. तो वैल्यू जो भी यूज करने वाले वो कांस्टेंट ही होते हैं. तो फिर वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट तो ये चार है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स है और स्ट्रिंग है. ये चार के सिवा और कुछ नहीं है. तो कितने टाइप के वेरिएबल्स होंगे? द सिंपल क्वेश्चन, अभी वेरिएबल क्या होता है? अगेन घर पे हम लोग क्या करते हैं? तो चलो अभी जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था शुगर का. चलो शॉप से आप लोगों ने शुगर लेके आए, वैसे सपोज उसके साथ एक राइस भी लेके आए. तो अभी कितनी चीजें हो गई आपके पास? दो चीजें. लाइक देयर इज अ शुगर विथ यू एंड अगेन देयर इज अ राइस. तो शुगर और राइस ये जो दो चीजें हैं उसका एक खुद का मीनिंग है. तो आप शुगर को राइस नहीं बना सकते और राइस को शुगर नहीं बना सकते. सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स. जब आप घर पे आए, यू हैंडेड ओवर इट टू योर मॉम एंड व्हाट योर मॉम डिड, उसने एक कंटेनर ले लिया, एक डब्बा और फिर एक दूसरा डब्बा. व्हाट शी डिड, दिस इज कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी. So she added this sugar into container A and then rice into container B. Now you can differentiate. Now see what I represented. The container A is called as container, first container is called as container A. क्योंकि मैं हमेशा नहीं बोलूंगी फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर. सो फर्स्ट कंटेनर को हमने एक नाम दिया and that name is A. And then again we assign name to the second container which is name B. So now A is what, आज हमने शुगर रखा है, उसका शुगर खत्म हो गया, कल हम लोग उसमें राइस रख सकते हैं. Definitely we can reuse that container to store multiple values, to store multiple constants. Getting my points? तो जितने टाइप के कांस्टेंट है वो जिसमें स्टोर करोगे आप, उतने टाइप के ही आपके वेरिएबल्स होंगे, उतने टाइप के ही आपके वेरिएबल्स होंगे. तो देयर इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट. टू स्टोर दैट यू विल नीड कैरेक्टर वेरिएबल. अभी आप बोलोगे कि ये जो कंटेनर है वो हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे? प्रोग्रामिंग का कंटेनर मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी. कोई भी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट अगर करना है तो हमें पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिजर्व करना पड़ता है. कहाँ पे भी हम ऐसे ही डेटा को स्टोर नहीं कर सकते. तो देयर वी नीड टू रिजर्व मेमोरी स्पेस एंड दैट मेमोरी स्पेस इज अ कंटेनर टू स्टोर वैल्यू. तो वो मेमोरी स्पेस को हम आइडेंटिफाई बाद में कैसे करेंगे? तो हम लोग उसको नाम देंगे एंड देयरफॉर दीज नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस are called as variable names. और why it is called as variable? आज मैंने a is equal to 10 लिखा, बाद में मैं a is equal to 20 भी कर सकती हूँ उसका काम होने के बाद. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि a का मीनिंग नहीं चेंज होगा, 10 का नहीं हो सकता, 20 का नहीं हो सकता, लेकिन ये कंटेनर में 10 भी आ सकता है और बाद में उसका काम होने के बाद 20 भी आ सकता है. So a becomes the variable. A becomes variable. So again जितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स है उतने ही टाइप के हमारे वेरिएबल्स हो गए. तो देख लेते हैं कि अभी कौन से वेरिएबल्स हैं. नाउ अगेन हियर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नीड टू लर्न अबाउट दैट मेमोरी थिंग. मेमोरी लिमिटेड है ना, तो वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज करेंगे, लेकिन कितनी वैल्यू स्टोर करेंगे? कितने नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? अगेन देयर इज नो लिमिट ऑन स्टोरिंग नंबर्स. अगर बहुत बड़े नंबर है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमें रेंज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज क्या होता है? तो अगेन वी कैन जस्ट कोरिलेट इट विथ द कंटेनर. ओके, द साइज ऑफ कंटेनर. कंटेनर कितना होता है? एक छोटा कंटेनर होता है, एक बड़ा कंटेनर होता है, एक उससे बड़ा कंटेनर होता है. सो एक कंटेनर है 2 kg का, तो उसका कैपेसिटी कितना हो गया? व्हाट विल बी द कैपेसिटी?
कैपेसिटी विल बी 0 to 2, 0 kg से लेके 2 kg तक ही हम स्टोर कर सकते हैं. Likewise, what will be the capacity of container of 5 kg? It will start from 0 to 5. 0 to 5. एक हमारे पास स्पेशल कंटेनर है, वो खोलते ना, जैसे हमारा टिफिन बॉक्स होता है ना, टिफिन बॉक्स में पार्टीशन होता है एक बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड में एक पार्टीशन और राइट हैंड साइड में एक पार्टीशन. अभी इसका कैपेसिटी कितना हो गया? एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें 1 kg की रह सकती है. जस्ट इमेजिन कि दैट कंटेनर इज ऑफ एक्चुअली 2 kg, बट एक चीज उसमें कितना रह सकता है? ओनली 1 kg. Isn't it? So left hand side 1 kg and right hand side 1 kg. Even if it has 2 kg capacity, it can store one ingredient of only for 1 kg. एक चीज उसमें 1 kg का ही रह सकता है, दोनों भी 2-2 kg के नहीं रह सकते. तो ना 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर, 0 to 2 का रेंज, 0 to 5 का रेंज, और यहाँ पे 2 पार्टीशन वाला रेंज. वैसे ही हमारा मेमोरी है. नाउ मेमोरी जब रिजर्व करते हैं तो कितने नंबर, उसका भी कुछ रेंज होगा ना. ऐसे ही हम लोग बस रिजर्व करके रखेंगे और उसमें नंबर्स बस स्टोर करते रहेंगे, ऐसे तो नहीं होने वाला है. देयरफॉर दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेयर यू नीड टू बिल्ड योर प्रोग्रामिंग स्किल. क्योंकि यहाँ पे ही गलती करते हैं हम लोग, सोचते ही नहीं हमें कौन सा नंबर स्टोर करना है. जैसे मैं अगर 4 kg का शुगर लेके आती हूँ और मैं 2 kg के कंटेनर में ठूस के डाल रही हूँ, तो होने वाला है क्या? डेफिनेटली इट इज अनेबल टू स्टोर, इट विल ओवरफ्लो, तो हमें दूसरा कंटेनर लेना ही पड़ेगा. तो वैसा ही हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है कि मेमोरी में नंबर कितना स्टोर करना है, वो सोचे बिना हम वो मेमोरी स्पेस को रिजर्व नहीं कर सकते. यहाँ पे ही आते हैं रेंजेस. तो इंटीजर जब हम लोग बोलते हैं तो उसका जो कीवर्ड है वो है इंट, उसका जो कीवर्ड है वो है इंट. तो ये जो इंट नाम का ये जो इंट करके जो कीवर्ड है, ये इंट कीवर्ड एक्चुअली मेमोरी में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इंट जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो वो बताता है कि यूजर को ना एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर मतलब फुल नंबर को स्टोर करना है. और जब हम सिंपली इंट बोलेंगे तो वो कितना मेमोरी स्पेस बाय डिफॉल्ट रिजर्व करेगा? 32 बिट के कंपाइलर में वो 2 बाइट करता है, और अभी एडवांस हो गया. सो इन एडवांस कंपाइलर्स इट बेसिकली स्टोर्स 4 बाइट्स. इट बेसिकली स्टोर्स 4 बाइट. एक्चुअली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम 2 बाइट का ही रेंज लेंगे, बिकॉज पहले से अभी भी स्कूल कॉलेजेस में जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, स्टिल वी यूज दैट 2 बाइट्स. ओके, even if that compiler has the capacity to store 4 bytes. तो ये बिट्स बाइट्स का कंसेप्ट आई थिंक आपका क्लियर होगा. अगर नहीं क्लियर होगा तो उसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बोनस में देने वाली हूँ, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट्स बाइट्स, और फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है. ये जो चीजें, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है, और शायद कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन just I will record that video in this coming week, and I will just give you people it as a bonus, so that you can just go through it. जिसका concept unclear है वो वीडियो को देख सकते हैं. तो int जो कीवर्ड है, int कीवर्ड जब लिखते हैं तो 2 बाइट होता है. अभी 2 बाइट में कितने नंबर आएंगे? जैसे 2 kg के कंटेनर में कितना आएगा? 0 से लेके 2 तक कितना भी आएगा, और 0.25 kg आएगा, 0.5 kg आएगा, 1 kg आएगा, 1.25 आएगा, 1.5 आएगा, कितना भी आ सकता है. यस, सो बिकॉज दैट इज द रेंज. वैसे इंटीजर में 2 बाइट में, ये बाइट का कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू कैन जस्ट वॉच दैट सेपरेट वीडियो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो. अदरवाइज ये जो 2 बाइट्स में एक्चुअली दिस इज द रेंज. नाउ दिस इज एक्चुअली माइनस 32,768. This is minus sign is actually here. Minus 32,768 to 32,767. अभी देखो रेंज माइनस, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थर्ड कंटेनर का.
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मेमोरी ऐसा ही होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जब तुम कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस जैसे ही हम रिजर्व करते हैं वो 2 बाइट रिजर्व करता है। लेकिन आप अगर देखोगे तो इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्टीशन है इट विल स्टोर नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड इट विल स्टोर पॉजिटिव नंबर्स। तो रेंज उतने बिट्स में कितना आता है, तो उसका मैक्सिमम है 32,767 एंड इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 बिकॉज इट विल स्टोर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। तो रेंज हो जाता है -32,768 टू +32,767। अगर आपको पॉजिटिव नंबर 32,768 स्टोर करना है तो आप इंटीजर को यूज कर सकते हो, 2 kg के डब्बे को यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। यू शुड टेक बिगर कंटेनर। तो इवन इफ इट इज इंटीजर टाइप, कौन सा वैल्यू, बड़ा वैल्यू 50,000 प्लस 50,000 करना है तो हम लोग इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। इंटीजर का वेरिएबल बस 2 बाइट ही एलोकेट करेगा, उससे ज्यादा वो एलोकेट नहीं कर सकता। और इसके लिए उसका ही एक्सटेंडेड डेटा टाइप है लॉन्ग। लॉन्ग कितना बाइट लेता है, 4 बाइट, और इसका बहुत बड़ा रेंज है। हम लोग थोड़ी देर में वो रेंज का टेबल भी देखेंगे। तो इसमें आप बहुत बड़े नंबर स्टोर कर सकते हो। और लॉन्ग एक्चुअली मेमोरी का 4 बाइट लेता है। इंट कितना बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। तो इंटीजर वेरिएबल्स में एक्चुअली प्राइमरी इज इंट एंड देन एक्सटेंडेड वन टू स्टोर बिगर वैल्यूज, उसके लिए कौन सा है, लॉन्ग है। देन अगेन इन कैरेक्टर बस एक सिंगल कैरेक्टर होता है, इट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 बिट्स। तो 8 बिट्स का रेंज, अगर उसमें भी वापस पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर का रेंज इंटीजर वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। एज यू नो दैट हम लोग ASCII का जो ASCII कोड्स यूज करते हैं, व्हाट इज ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको ही पता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरेक्टर को इंटरप्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकता। So we need to convert those character into numeric form। और ये कैसे करेंगे, और यूजर नहीं तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, और बाइनरी में फिर उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता। इसके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पहले बनाया गया, ये इंग्लिश के सिर्फ कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो दैट कोड इज नोन एज ASCII कोड। तो जैसे कैपिटल केस ए अगर लिखते हैं ना तो उसका ASCII वैल्यू है 65। तो हम लोग अगर ए लिखते हैं तो बैकग्राउंड में क्या जाता है कंप्यूटर में, 65, और 65 अगेन इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। सो इट टेक्स 1 बाइट, इट टेक्स 1 बाइट। तो कैरेक्टर का रेंज कितना है, -128 टू +127। सो कैरेक्टर में एक है कि अगर सपोज यू वांट टू स्टोर स्ट्रिंग लाइक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। कैसे, उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, और वहां पे सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स के लिए आपको स्टोरेज क्रिएट करना पड़ता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सच वेरिएबल्स, अभी ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है, एक कैरेक्टर को हमेशा कितना बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा, ओनली 1 बाइट, ओनली 1 बाइट। और यहाँ पे ASCII नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 to 128, और यहाँ पे 0 to 256। MS DOS कंप्यूटर्स में कितना होते हैं, 0 to 256। और पॉजिटिव वैल्यूज एक्चुअली हम लोग कितना यूज करते हैं, 0 to 128। एक्चुअली यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर ग्राफिक कैरेक्टर और ये सब लगते हैं ना तो वो सारे एकोमोडेट किए गए ये 0 to 256 में। अपने नॉर्मल कैरेक्टर तो 0 to 128 में कवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 to 256 में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी कवर किए हैं। अभी आप बोलोगे यहाँ पे -128 to 127, तो यहाँ पे 0 to 256 कैसे आ गया। अगेन दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न। जब भी, as I told you, there is a one container which has partition. So left hand side partition and right hand side partition. तो left hand side partition में
नेगेटिव नंबर स्टोर किया है और राइट हैंड साइड पार्टीशन में पॉजिटिव नंबर। अभी आप सोचो कि ये जो राइट हैंड साइड का पार्टीशन है वो पॉजिटिव नंबर स्टोर कर रहा है और आगे आपको मालूम है कि अरे बाबा मैं पॉजिटिव ही नंबर के लिए ये कंटेनर को यूज करने वाली हूँ। जैसे एक कंटेनर है उसमें 2 पार्टीशंस है, लेकिन आपको मालूम है मैं शुगर और राइस ऐसा वो कंटेनर में स्टोर नहीं करने वाली हूँ। ऑलवेज आई विल बी यूजिंग इट टू स्टोर शुगर। तो अभी एक्चुअली 2 पार्टीशन होने की वजह से मैं प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो पार्टीशन में बीच का निकाल दूंगी और वो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 kg हो जाएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी अगर आपको नेगेटिव नंबर के लिए वो मेमोरी स्पेस यूटिलाइज नहीं करना है तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अगेन 2 keywords आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड कीवर्ड एंड अनसाइंड कीवर्ड। साइंड बाय डिफॉल्ट रहता है, इसके लिए उसका रेंज कितना होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब हम जैसे इंट ए बोलूंगी तो इंट ए विल कंसिस्ट only minus 32,768 to plus 32,767। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे आगे एक इंट के आगे एक वर्ड लिखती हूँ अनसाइंड तो उसका रेंज डबल हो जाता है और वो क्या हो जाता है 0। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 65,500। क्या हो गया देखो 127 में 128 ऐड करो you will get 256, so range get double, so it becomes 0 to 256। वैसे ही किसके लिए होगा इंटीजर के लिए माइनस 32,768 है वो ऐड कर दो 32,767 में you will get 65,535। तो वो क्या हो गया उसका डबल हो गया रेंज। उतना ही स्पेस वी आर यूटिलाइजिंग टू स्टोर लार्जर नंबर, तो और ज्यादा मेमोरी, क्योंकि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पेस लिमिटेड है। बीइंग अ स्मार्ट प्रोग्रामर आपको ये ट्रैक रखना ही पड़ेगा कि आप अच्छे तरीके से आप कैसे मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हो। अननेसेसरी अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो और जस्ट यू आर वेस्टिंग मेमोरी स्पेस तो अगेन योर प्रोग्राम विल बिकम स्लो एंड इट विल कंज्यूम मोर मेमोरी स्पेस। सो यू शुड कीप इन माइंड कि ये मेमोरी स्पेस को कैसे यूज करना है। Signed and unsigned only for integral type and not for floating point type। floating मतलब डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स में एक्सपोनेंशियल सीरीज भी आता है तो उसका बहुत बड़ा रेंज होता है। द डिफॉल्ट रेंज डिफॉल्ट साइज ऑफ दिस फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट वैल्यू इज 4 बाइट्स। कैरेक्टर को 1 बाइट डिफॉल्ट, इंटीजर को 2 बाइट और फ्लोट को 4 बाइट्स, और ये इसका रेंज है कि 3.4 into 10 raised to minus 38, 10 raised to minus 38 to 3.4 into 10 raised to 38, again negative to positive, and it will allocate how many bytes 4 bytes in memory। so these are the floating point variables। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, देखो हमने क्या क्या सीखा। कांस्टेंट, जितने टाइप के कांस्टेंट है उनको हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो फिर वही क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए, जिस जो कंटेनर में हम लोग स्टोर करेंगे हो गए वेरिएबल्स। अभी हमने फाइनली क्या सीखा, कितने टाइप डेटा टाइप्स कितने होंगे हमारे। बेसिक विल बी ओनली, प्राइमरी विल बी ओनली 2, इंटीजर एंड कैरेक्टर, सॉरी इंटीजर एंड फ्लोट, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में ही वापस क्या आता है इंट भी आता है और कैर भी आता है, क्योंकि कैर का बैकग्राउंड में क्या जाता है आस्काई वैल्यू, और आस्काई वैल्यू किसमें होता है अगेन नंबर्स न्यूमेरिक फॉर्म में ही होता है। तो कैरेक्टर इज आल्सो बेसिकली अ इंटीग्रल टाइप, इट इज नॉट डिफाइंड एज कैरेक्टर टाइप internally, it is for our understanding purpose we mention it as a char data type। is that clear? तो let's look at this डेटा टाइप्स इन C++। तो हम लोग कितने यूज करने वाले, देखो प्राइमरी हमारे पास जो है फर्स्ट वी विल सी कि बिल्ट इन कौन से है। बिल्ट इन में वॉइड का हमने कल ही मीनिंग देखा था, वॉइड मतलब नथिंग होता है। तो अगर कुछ एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो इमीडिएटली वहां पे करना है हमें वॉइड। पैरामीटर्स नहीं ले रहा है तो देयर वी कैन यूज कीवर्ड वॉइड। वॉइड एक अलग परसेप्शन से पॉइंटर में भी यूज किया जाता है, बट दैट वी विल लर्न लेटर। लेकिन बिल्ट इन टाइप से मेजर 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो इंटीजर वैल्यूज और दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज।
और इंटीजर वैल्यूज में प्राइमरी इज इंट, जो 2 बाइट लेगा, उससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसका ही कौन सा है, लॉन्ग है, उसका ही कौन सा है, लॉन्ग। और वैसे ही इंटीग्रल टाइप में क्या आता है, कैर भी आता है। वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आता है, फ्लोट विच टेक 4 बाइट। एंड यस, फ्लोटिंग पॉइंट का एक्सटेंडेड, फ्लोट का एक रेंज है, डबल में उसका फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर स्टोर करना है तो उसका रेंज डबल हो जाता है। डबल का है 8 बाइट्स, और इससे भी और भी एक एक्सटेंडेड है, दैट इज लॉन्ग डबल, और लॉन्ग डबल का 10 बाइट्स है। तो वैसे मेमोरी स्पेस, जैसे आपको क्या ऑपरेशंस करने हैं, उसके हिसाब से कितने वैल्यूज पे ऑपरेशन करना है, वो वैल्यूज कैसे कौन से टाइप के होंगे, अकॉर्डिंगली यू शुड डिफाइन दैट डेटा टाइप। So again here float, double and then long double. This much we have to learn, okay, in initial stage. But further हम लोग जैसे आगे चले जाएंगे ना, वैसे हम लोग क्या सीखेंगे, यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन के पहले हम सीखेंगे डिराइव। डिराइव मतलब इसी डेटा टाइप्स को यूज करके ही हम लोग एक अलग स्ट्रक्चर हमारी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करेंगे, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है लैंग्वेज में। So these are just the extensions to the existing data types, and therefore these are known as derived types. So derived types में arrays, functions, pointers, reference, ये सब हम सीखने वाले हैं। So but now again these are inbuilt things. लेकिन हमें प्रोग्राम लिखते मतलब क्या करते हैं हम लोग, रियल वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स को सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन देके उसको सॉल्व करते हैं। और रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना। स्कूल का प्रॉब्लम क्या होगा, अरे बाबा स्टूडेंट का डेटा कैसे मेंटेन करना है। एक कंपनी का प्रॉब्लम क्या होगा, एम्प्लॉय का डेटा कैसे मेंटेन करना है। और ऐसे n नंबर ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग नीड्स सॉफ्टवेयर, एंड एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो ये इनबिल्ट डेटा टाइप में ही अगर हम लोग यूज करेंगे तो बहुत कोड लिखना पड़ेगा, एंड देयर इज again we will just get stuck into representing that data, and therefore we can define our own data types. There is a mechanism in C++, so those are user defined types, and again there are multiple types, that is structure. Again structure has limitations, union is again a part, and then as structure has limitation we can extend it towards the class, and class is the concept where actually the new concept of C++ is invented, which is the core concept of C++, which is known as object oriented programming. ये हम लोग तभी सीखने वाले हैं, just I'm giving you overview. Enumeration is something where you can define the value, range of values on your own. So I will just show you one example of enumeration also, so that you will understand how you can create your own data types by just how you can just derive it by using the enumerations. So just go through fast. These are the integral data types. Integral data types में कौन सा आता है, int, उसका कितना साइज है 2 बाइट, और 2 बाइट में कितना आता है -32,768 to +32,767. Then moving forward there is another data type which is the extended one of this integer category itself, और ये इसका range है, just you read it, okay. In the same way now I want to explain you about this short. Actually as I told you कि integer जब int a करके हम लोग लिखते हैं ना, when we type int a, तो int a जब हम लोग लिखते हैं तो actually it will allocate 2 बाइट, ऐसा हमारा परसेप्शन है। लेकिन ये पहले था, पहले के कंपाइलर क्या थे, 32 बिट के कंपाइलर थे। 32 बिट के कंपाइलर में एट अ टाइम सिर्फ 2 ही बाइट प्रोसेस हो सकता था। अगर वो 2 ही बाइट प्रोसेस हो सकता है तो उसका मिनिमल साइज कितना होगा, 2 बाइट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है उसका प्रोसेसिंग। एंड देयरफॉर इंटीजर में कितना रहता था, 2 बाइट। उसका इंट किया तो कितना बाइट अलोकेट करेगा वो, ओनली 2 बाइट्स। बट नाउअडेज कंपाइलर कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड टू 64 बिट्स, उससे भी बड़े बड़े कम आते हैं। तो कंपाइलर अगर 64 बिट को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, तो एक्चुअली जब हम इन डिक्लेयर करते हैं तो एडवांस कंपाइलर्स में कितना साइज प्री रिजर्व होता है, 4 बाइट्स। लेकिन अभी 4 बाइट तो वेस्ट ही हो जाएगा ना। ऑलवेज तो हम लोग ये 4 बाइट में इतने सारे बड़े बड़े नंबर आते हैं, ये नंबर तो हम लोग यूज ही नहीं करने वाले हैं, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने।
क्यों इतना बड़ा साइज चाहिए हमें? वो कंटेनर तो वेस्ट ही जाएगा। जैसे 10 केजी के कंटेनर में ना पाव केजी का जस्ट कुछ चीज स्टोर करो, तो इट विल बी जस्ट वेस्टेड। सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी वेस्ट होता है। तो फिर एडवांस कंपाइलर में कम स्पेस कैसे रिजर्व करना है? एंड देयरफॉर वी कैन ऐड वन मोर कीवर्ड, so that keyword is short. So instead of just writing int a, we will write short a. So even if that compiler is of 64 bit, it will reserve only 2 bytes from the memory. And then the char data type, you know, char data type again it is -128 to +127. Unsigned data type, कैरेक्टर के लिए अनसाइंड किया तो क्या हो जाएगा? इसके आगे और एक वर्ड डालना है हमें, अनसाइंड इंट, unsigned short int, unsigned long, unsigned short int, unsigned char, like that we can use. Then range will get doubled. So it will become 0 to 255. And for integer values, it will become 0 to 65,535. वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, ये हमने ऑलरेडी देखा था. दिस इज द रेंज, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू कैन चेक द रेंज. और इसके साथ एक्सटेंडेड है लॉन्ग डबल, इट टेक्स 4 बाइट्स, दिस टेक्स 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल टेक्स 10 बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी स्पेस. So now we will see one program. Before that, I want one feedback. Everyone is understanding all the concepts? सबको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आई नीड फीडबैक. जोकिम, विनायक, yes Vinayak, you can go through it again. Just watch it twice, and when we will start with programs again, you will clear many things in the programming. So slowly you can understand that, and I will just create one video shortly on that binary thing also, so that you will understand that concept as well. So just move forward to the next slide. Just see one program. We will execute this program as well. तो हम लोग को अभी देखना है कि हम लोग कैसे डेटा टाइप्स का यूज करें, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें और उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करें. तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम. एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम विल बी ऑलवेज #include iostream.h. next part will be using namespace std basically this is standard input output. As I told you, I am using Dev C++ compiler, and therefore I am using namespace. Okay, using directive I am using directive and namespace. Namespace stands for the folder from which it will extract the files. So using namespace std. And the third statement, again we will start with no need to write conio. I will explain you at later stage when we will start writing program actually why we need to write that conio. बोरलैंड का जब टर्बो सी का यूज करते हैं ना, तभी हमें यूज करना पड़ता है. अगर वो डॉस बेस्ड कंपाइलर है तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगी, बिकॉज मोस्ट कॉमनली दिस 12th स्टूडेंट्स मस्ट बी यूजिंग दिस टू फंक्शंस, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch. लेकिन उसका एक्चुअली एग्जैक्ट क्या इनपुट्स है, कैसे उसको किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, वो हमें समझना है. तो मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे. एंड एज यू आर यूजिंग देव C++ void की जगह हम इंट यूज कर रहे हैं. फिर इंट a इज इक्वल टू हमने लिखा 25,000. इट्स फाइन. इंट मतलब अभी कितना होगा यहाँ पे? Here we will consider 2 bytes. Okay, even if that compiler is 64 bit, here we will consider that it will reserve 2 bytes. Otherwise we need to write it short int. तो 25,000 रिजर्व किया. और यहाँ पे देखो int b, इंटीजर वैल्यू है b. अभी यहाँ पे आंसर चाहिए मुझे. जस्ट चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो स्टूडेंट्स, और आई वांट आंसर. a का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 25,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 25,000.
Yes, into 2, what is the value? 25,000 into 2, how much it will become now? It will become 50,000. Now see, as soon as it becomes 50,000, that a is integer, 2 is also integer. Now try to understand the arithmetic, what happens here. तो जब a इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो उसको 2 बाइट ही मेमोरी में एलोकेट हुआ था, और 2 बाइट एलोकेट हुआ था 32 बिट के कंपाइलर में, 2 बाइट एलोकेट हुआ था। तो जैसे ही हमने a इंटू 2 किया तो वैल्यू कितना हो गया? 50,000। और वो जो 50,000 का वैल्यू है, वो 50,000 का वैल्यू हम लोग अभी whether it will remain in that container of integer, इंटीजर का कंटेनर में एलोकेट होगा, उसका रेंज कितना है? -32,768 टू +32,767। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आंसर आपको पूरा रॉन्ग मिलने वाला है, बिकॉज इवन इफ फाइनल आउटपुट इज इंटीजर का इंटीजर की रेंज में है, लेकिन a इंटू 50,000 जैसे एक्सीड हो जाता है, इट ओवरफ्लोज एंड देन इट गोज इन नेगेटिव, और कुछ ऐसा ही वैल्यू आपको मिलेगा, गार्बेज वैल्यू, जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता। वो वैल्यू को क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। एंड देन डिवाइड बाय 5, कुछ उल्टा ही आंसर आपको आएगा। हम लोग ये एक्चुअली ये एग्जैक्टली मैं आपको शो नहीं कर सकती, क्योंकि 32 बिट के कंपाइलर में ये रॉन्ग आंसर आएगा, लेकिन एज दीज कंपाइलर्स नाउअडेज कंपाइलर्स आर 64 bit, yes, they will calculate it in a correct way, but here we can add short keyword and we can still test it. तो सी आउट int a is a and int b is b, और फिर फाइनली हमें बस रिटर्न करना है वैल्यू, दैट इज सक्सेस। प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनली क्या रिटर्न होगा? 0 रिटर्न होगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम which we can use. Let's execute this program in a compiler. So already we written this, we compiled. First of all, we need to save it. Then compile. The file is processed and just we will see the output. Int is 25,000 and int b is 10,000 because it is divided by 5. Now I will change it. Just see your output. I think now output is visible. Now here a is 25,000 and b is 10,000. This is correct because as I told you, this is 64 bit. Now what we can do, I will just end this and here I will add short int. And short int b. अभी मैंने क्या किया? 2 बाइट का रेंज कर दिया। 2 बाइट का रेंज अगर हम करते हैं, as it is a 64-bit compiler, here also again we need to make it short. Otherwise, you will not understand why it is not showing. Because by default it allocates 4 bytes and final result again. So we can try this.
if you will execute this in this 32-bit compiler, definitely you will get an error, because again that range exceeds. So therefore you can just try it, but nowadays compilers are advanced, therefore just you can make use of this short int as well to store the 2 bytes, and this is the way to just declare the values. So just go through it, try this program in the compiler. We can just extend the exceed the range, and then again we can go through it. So this is the range table, size and range of C++ basic data types. So here -128 to +127, 0 to 250. They see this is signed char and this is unsigned char. Again this is signed character, and then int, again int and unsigned int. This signed int, again why it is written twice? Because it has 2 bytes. Okay, here also here is the 2 bytes, and unsigned short int and signed short int, again same range. Why we written this same range here? This is by mistake, but this is again unsigned short int and signed short int. Why? As I told you, 64-bit compiler, and to differentiate between 64-bit and 32-bit. So 64-bit we may use, if specifically we want to reserve 2 bytes, then we may go for unsigned short int and signed short int. Again, long you can use as it is, then float, double, and long double. These values you can use. Now let's come to the escape sequence characters. Now in this programming language, basically we will be most probably using 2 escape sequence characters commonly, but we will learn number of characters. Now what are these escape sequence characters? क्या होते हैं escape sequence characters? तो actually as you know that white spaces are ignored. तो program लिखते वक्त I pressed enter. Here if you can see what I did, I pressed enter. हर एक स्टेटमेंट के बाद हमने एंटर प्रेस किया, यस लेकिन ये एंटर प्रेस करके ये जो व्हाइट स्पेसेस है, these are not read by the compiler. ये compiler read नहीं करता, it reads it as a continuous statement like this it will read. So it doesn't have any concern. तो हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं? Just to differentiate, for our understanding purpose, we are writing in this way on the separate line, and we are creating one programming structure so that that program we will be able to understand. Okay, so here again, while writing programs, this escape sequence characters, why we use? Again, suppose I want to display one message on the screen, welcome, and on the next line I want to display students. तो अगर मैंने वैसे लिखा see out welcome, and then in next see out I wrote suppose see here, simple see out statement I will use here, see out, and just I will put welcome. Again end of statement, so we need to put it semicolon, see out students. Now what you are expecting? You are expecting that this output should get displayed in 2 lines. Now see what happens. Just you will save it, compile it, and execute. What happens? See, welcome students. Because C++, this compiler do not recognize white spaces. It will consider it as a continuous thing, and therefore it will just simply connect all the outputs together, and it will just merge it and show it. So now we need to format it. We need to tell compiler that please add one space in between. Now how to add space? Here we need to add space. तो स्पेस तो मैन्युअली हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर हम स्पेस देंगे तो ही वहां पे स्पेस आएगा, लेकिन स्टिल इट इज इन अ सिंगल लाइन. स्टिल अगर आपको सपोज न्यू लाइन में जाना है तो फिर ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज करना पड़ता है. लाइक फर्स्ट वन इज tab stop \t for tab stop, which causes printing to continue 8 spaces to the right.
राइट हैंड साइड में क्या होता है, ये 8 स्पेसेस। वो नॉर्मल जो टैब स्टॉप होता है ना, वो टैब स्टॉप इट विल जंप लाइक दैट एंड इट विल लीव दोज नंबर ऑफ स्पेसेस व्हाइल शोइंग दैट आउटपुट ऑन द कंसोल। कंसोल मतलब वो जो ब्लैक विंडो दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज कंसोल। देन द बैकस्लैश एंड द न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन पे क्यों जाना, अगर वो न्यू लाइन पे जाना है तो वापस वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से न्यू लाइन पे जाएगा एंड देन इट विल do carriage return on the left hand side, so that left to right it can start. So backslash n for new line which causes both the carriage return and line fade। एक न्यू लाइन पे जाना भी होता है, तो यहाँ पे न्यू लाइन पे अगर प्रिंट करना है तो हमें बैकस्लैश n यूज करना पड़ेगा, थोड़ा जंप करके। थैंक यू सो मच गाइज।